السلام علیکم. میں آپ کا دینیات ٹیچر رافت اللہ برق گورکھپوری آپ سے مخاطب ہوں. آپ اپنی دینیات کی کتاب کھول لیں. صفحہ نمبر 65، سبق نمبر 8، حج. اور اسے غور سے دیکھیں. میں اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو باتیں سمجھائی جائیں اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. بہت دنوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا تھا. اس کو خانہ کعبہ یا بیت اللہ کہتے ہیں. بعد کے زمانے میں کچھ گمراہ لوگوں نے خانہ کعبہ میں بھی بت رکھ دیے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور ساری دنیا میں توحید پھیلانے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دینے کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ کو مرکز قرار دیا. حج کسے کہتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ اس عبارت کو غور سے دیکھیں. کچھ مقررہ دنوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور عرفات کے میدان میں کچھ عبادتیں کرنے کو حج کہتے ہیں. یعنی مقرر دن ہیں، انہی دنوں میں خانہ کعبہ کی آپ زیارت کریں اور عرفات کے میدان میں کچھ عبادتیں کریں، اسی کو حج کہا جاتا ہے. حج اسلام کی بڑی اہم عبادت ہے. اسلام میں جو عبادتیں ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا نماز کے بارے میں. نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں عبادتیں بدنی عبادتیں ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے. نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے. اور حج جو ہے ایسی عبادت ہے جس میں زکوٰۃ کا مال کا بھی شمول ہے اور بدن کا بھی شمول ہے. یعنی بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اب آپ کتاب میں دیکھیں کہ کچھ مقررہ دنوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور عرفات کے میدان میں کچھ عبادتیں کرنے کو حج کہتے ہیں. حج اسلام کی بڑی اہم عبادت ہے. نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی بھی. حج مالدار، عاقل، بالغ، تندرست مسلمانوں پر عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. راستے کا محفوظ ہونا اور واپسی تک بیوی بچوں کے لیے خرچے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر میں کوئی محرم بھی ہو، جیسے باپ، بیٹا، بھائی یا شوہر. حج کب فرض ہوا اس بات کو جان لیں. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مسلمانوں نے ذرا اطمینان کا سانس لیا تو سن 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرو. مگر اس سال مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج نہیں کرنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی واپس آ گئے. سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکے تشریف لے گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے حج ادا فرمایا. اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حج کب فرض ہوا، حج کی فرضیت کب ہوئی. یہ بات یاد رکھیں. سن 6 ہجری میں اللہ پاک نے حکم بھیجا اور سن 6 ہجری میں حج فرض ہوا.
अब हज की फजीलत क्या है, इसके बारे में आगे देखें। हज की फजीलत, इस्लाम में हज की बड़ी फजीलत है। कुरान शरीफ में अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन लोगों पर हज फर्ज है जो वहां तक जाने की ताकत रखते हों, और जो शख्स हज से इनकार करे तो अल्लाह को उससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ताला सारे जहान वालों से बेनियाज है। हदीस में भी जगह जगह हज की फजीलत आई है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह को खुश करने के लिए हज किया, हज में तमाम बेशर्मी की बातों से अलग रहा, किसी से लड़ाई झगड़ा न किया और न कोई दूसरा बुरा काम किया, जब वो हज से वापस होगा तो गुनाहों से ऐसा पाको साफ होगा जैसा वो मां के पेट से पैदा होते वक्त था। बेशक हज से तमाम बुराइयां दूर हो जाती हैं, मगर इस हाल में जबकि हज करने वाले की गरज सिर्फ अल्लाह को खुश करना हो, लोगों को दिखाना, नाम पैदा करना और कोई दुनिया का फायदा हासिल करना न हो। जिहाद इस्लाम में अफजल इबादत है। जिहाद अल्लाह की राह में जान लड़ा देने का नाम है। इससे बड़ी और नेकी क्या होगी। मगर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, औरतों के लिए हज ही जिहाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर किसी शख्स के पास रास्ते का खर्च भी हो और सवारी भी, और फिर भी वो हज न करे, तो उसके हज किए बगैर मर जाने और यहूदी या नसरानी होकर मर जाने में कोई फर्क नहीं है। हज का बहुत बड़ा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज का बदला जन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अगर वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है, और अगर वो मगफरत चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी हज का बड़ा एहतमाम करते थे। खुलफाए राशिदीन भी अपने अपने ज़मानों में बड़े एहतमाम से हज फरमाते थे। खुलफाए राशिदीन का मतलब वो चारों खलीफा जो अव्वल अव्वल हैं, मसलन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये खुलफाए राशिदीन कहे जाते हैं। ये खुलफाए राशिदीन भी अपने अपने ज़मानों में बड़े एहतमाम से हज फरमाते थे। दूर दूर से मुसलमान हाकिमों को बुलाकर हालात मालूम करते और मशवरे देते थे। कोई बहुत ज़रूरी हुक्म देना होता तो हज के आम मजमे में ऐलान फरमाते, ताकि इस्लामी सल्तनत के एक एक गोशे में वो हुक्म पहुंच जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा फरमाया, जो लोग कुदरत रखते हुए हज नहीं करते हैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त आएगी जब लोग खाने काबा का हज करना छोड़ दें। हज की इस्तिलाहें हैं, इन्हें याद कर डालिए और इन्हें देखिए। मैं पढ़ रहा हूँ। नंबर 1, एहराम, यानी एहराम किसे कहते हैं? हज का लिबास पहनना, हज की नीयत करना और हज की दुआ पढ़ना, इसे एहराम कहते हैं। नंबर 2, मीकात। मीकात क्या है? वो मकाम जहां पहुंचकर हज करने वाले एहराम बांधते हैं, उसे मीकात कहते हैं। नंबर 3, तलबिया। एहराम बांधने के बाद से हज खत्म होने तक उठते बैठते और हज के अरकान अदा करते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं उसको तलबिया कहते हैं। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका।
हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं तेरी पुकार पर तेरे दरबार में हाजिर हूं। तेरा कोई शरीक नहीं, मैं तेरे दर पर हाजिर हूं। बेशक तारीफ तेरे लिए है और नेमत भी तेरी ही है और बादशाहत भी तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। नंबर 4, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, इसको तहलील कहते हैं। नंबर 5, तवाफ, खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाना, इसे तवाफ कहते हैं। नंबर 6, वकूफ, अरफात और मुजदलफा में कुछ देर ठहरना, इसको वकूफ कहते हैं। नंबर 7, रमी, जमरा के पास कंकरियां मारने को रमी कहते हैं। नंबर 8, तहलीक, बाल मुंडवाना। नंबर 9, तकसीर, बाल कटवाना और छोटे कराना। नंबर 10, उमरा, एहराम बांधकर काबे का तवाफ करना और सफा व मरवा के दरमियान दौड़ना। हज के दिनों के अलावा भी उमरा कर सकते हैं। अब इसके बाद हज की किस्में, इसे भी जान लीजिए कि हज कई किस्म का होता है, कितनी किस्म का हज होता है। हज जो है 3 किस्म का होता है। नंबर 1, इफराद, नंबर 2, क़िरान, नंबर 3, तमत्तु। अब इफराद किसे कहते हैं, क़िरान किसे कहते हैं और तमत्तु किसे कहते हैं, ये तीनों की तारीफ अलग अलग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इफराद वो हज है जिसमें एहराम बांधते वक्त सिर्फ हज का इरादा किया गया हो, ऐसा हज करने वाला मुफरिद कहलाता है। नंबर 2, क़िरान, क़िरान उस तरीक़े हज को कहते हैं जिसमें एहराम बांधते वक्त हज और उमरा दोनों की नियत की हो, ऐसा हज करने वाला कारिन कहलाता है। नंबर 3, तमत्तु, तमत्तु उस तरीक़े हज को कहते हैं जिसमें हज के दिनों में पहले एहराम बांधकर उमरा कर लिया जाए और फिर कुछ दिनों के लिए एहराम खोल लिया जाए, फिर हज का एहराम बांधकर हज कर लिया जाए, ऐसा हज करने वाला मुतमत्ते कहलाता है। अब हज करने का तरीका क्या है उसे देखिए गौर से। हज में 3 बातें फर्ज हैं, अगर वो छूट जाए तो हज ना होगा। हज का पूरा तरीका ये है कि पहले तवाफ़े कुदूम करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं, फिर सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़कर मिना को चल देते हैं, रात को मिना में रहते हैं। 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात की तरफ रवाना होते हैं, वहाँ शाम तक क़याम करते हैं। अरफात का मंजर बड़ा ही अजीब होता है। दुनिया भर से आए हुए अल्लाह के लाखों मुखलिस बंदों का ठाठे मारता हुआ समंदर दूर दूर तक नजर आता है। कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, मगर सबका एक ही लिबास, सबकी जबानों पर एक ही अल्लाह की बड़ाई, सब एक ही मोहब्बत में, एक ही की मोहब्बत में डूबे हुए नजर आते हैं। न कोई गरीब है न अमीर, न छोटा है न बड़ा, न कोई राजा है न प्रजा, सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं, सब भाई भाई हैं, सब एक ही के गुण गाते हैं, सबका एक ही पैगाम है और एक ही पुकार। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सारी नेमतें उसी की हैं, उसका कोई शरीक नहीं। हम सब उसके बंदे हैं और उसकी पुकार पर, उसके दर पर हाजिर हैं। अरफात में जोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद वहां से मुजदलफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुजदलफा में मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है। रात को मुजदलफा ही में क़याम रहता है। 10 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़कर मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं और दोपहर से पहले
और दोपहर से पहले पहले मीना में पहुंचकर जमरा अकबा पर 7 दफा कंकरियां फेंकते हैं। रमी के बाद तलबिया कहना बंद कर देते हैं। फिर कुर्बानी करके बाल मुड़वाते या कतरवाते हैं और इहराम उतार कर अपने रोज़मर्रा के कपड़े पहन लेते हैं। फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का जाते हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद मीना आ जाते हैं। तवाफ़ ज़ियारत का मतलब है आखिरी तवाफ़। हज के लास्ट में आखिर में जो तवाफ़ किया जाता है उसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद मीना आ जाते हैं। मीना में 12 ज़िलहिज्जा तक रहते हैं। उन दिनों यानी 11वीं और 12वीं 2 दिनों में मस्जिद खीफ के पास जो तीनों जमरे हैं उनकी रमी करते हैं। हर एक पर 7 कंकरियां फेंकते हैं और कंकरियां फेंकने के बाद तकबीर कहते हैं। उस रमी में पहले जमरे उला की, फिर जमरे उस्ता की, फिर जमरे अकबा की रमी करते हैं। जिलहिज्जा की 12वीं तारीख ख़त्म होते ही हज ख़त्म हो जाता है। हज से फारिग होकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बस्ती की ज़ियारत के लिए जाते हैं। खाने काबा की ज़ियारत के बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और दीन दुनिया की दौलतों से दामन भर कर वापस आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खाने काबा की ज़ियारत नसीब करे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर दिखाए और हज की नेमतों से माला माल करे। आमीन। ये पूरे सबक की रीडिंग हो गई। इसे आप अच्छी तरह पढ़ डालें, इसकी बातों को समझ कर याद कर डालें। ख़ास तौर से हज की इस्तिलाहें, हज की किस्में, हज का तरीक़ा, हज की फजीलत, हज कब फ़र्ज हुआ, ये सारी बातें पढ़कर याद कर डालें। फिर इसके बाद मश्क यानी सवालों के जवाब लिखाए जाएंगे। इसे आप अपनी कापियों पर लिख कर याद कर डालें और उसका फ़ोटो खींचकर मेरे यहाँ भेजें ताकि वो चेक कर लिया जाए। वस्सलाम।